नहीं है। आम आदमी पार्टी के नेता आते हैं, झांकते ही नहीं इधर ना। तो यहाँ सफाई, बिल्कुल सफाई के मामले में जीरो है सर। जो यहाँ के विधायक हैं वो सोए पड़े हैं, जनता की उनको कोई फिक्र नहीं है। रोड बनवाना तो मेरे ख्याल से पीडब्ल्यूडी एमसीडी दोनों काम है, जो कि आपके पास ही है, तो हम तो आपसे खुश नहीं हैं। Hello and welcome to Delhi Dangal Ground Zero Survey. I am Tejshri Purandare, and as we promised you that daily we'll be traveling to every gully and every nukkad so as to get you the poll pulse of the voters. So today we'll be traveling to Vishwas Nagar and have a reality check that whom does the people have Vishwas on in Vishwas Nagar. Hello, I'm Mohit Bhatt, and this time around, the political battle in Vishwasnagar will be very, very interesting. Now, O.P. Sharma, the sitting MLA from the BJP from the area, was able to hold his fort despite Aam Aadmi Party having a strong wave in last two elections. This time around, Om Prakash Sharma, the sitting BJP MLA from Vishwasnagar, is contesting against Deepak Singla from the Aam Aadmi Party. Absolutely, Mohit, and this time again Aam Aadmi Party have entrusted their faith in the candidate Deepak Singla. Deepak Singla was also the same candidate who lost against O.P. Sharma in the previous elections. And this time again, he is contesting from the same seat of Vishwas Nagar. We'll have to see that what happens next. Will he be able to win for the first time and gain the people's Vishwas from this seat? So let's hit the ground. Let's speak to the people and get the pulse of people. Then what exactly are the issues that will impact the voters when it comes to the polling day? In the face of sweeping victories by the Aam Aadmi Party in the 2015 and 2020 Delhi polls, where Aam Aadmi Party claimed 67 and 63 seats respectively out of the 70-member assembly, the BJP held firm in Vishwas Nagar, with O.P. Sharma securing the seat thrice. The team of Delhi Dangal has reached the Vishwas Nagar constituency today. Now, Om Prakash Sharma, popularly known as O.P. Sharma, is the MLA from Vishwas Nagar constituency. And the interesting part is that despite Aam Aadmi Party having gaining ground in Delhi, we see that how Om Prakash Sharma since 2013 has been an MLA. So he's campaigning in Vishwas Nagar area. Let's speak to him and ask him that what exactly are the issues that O.P. Sharma will be taking on the ground. ओम प्रकाश शर्मा जी, सबसे पहला सवाल कि 2013 से आप विधायक हैं, आम आदमी पार्टी की लहर हो चाहे कुछ हो, ओपी शर्मा को टिकट जरूर मिलता है और ओपी शर्मा जीतते जरूर हैं। ये मेरे हाई कमांड की मेहरबानी है जी, और जनता की कृपा है कि वो बार बार हर बार मुझे दिल्ली की विधानसभा में भेजती है। इसके लिए मैं अपने क्षेत्र की जनता के चरणों में नमस्कार करता हूँ। क्या कारण है कि अगर लहर होती आम आदमी पार्टी के 63 विधायक आते हैं, 67 विधायक आते हैं, फिर भी ओपी शर्मा कहीं ना कहीं जीत के जरूर आते हैं और असेंबली पहुंचते हैं, ऐसा क्या ओपी शर्मा विश्वास नगर में करते हैं? देखिए, क्षेत्र की जनता का विश्वास है, उनका प्यार है, उनका आशीर्वाद है और लगातार विकास जो केंद्र की जो चीजें हैं, केंद्र के द्वारा जो दिल्ली में चलाए जाते प्रकल्प हैं, उन प्रकल्पों की यदि मैं बात करूं तो मेरे क्षेत्र में 8,000 करोड़ रुपया इस क्षेत्र के विकास कार्यों में लगा है और उसमें 5,500 करोड़ रुपए की लागत से आईटी हब कड़कट डूमा में बन रहा है। गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी का इस दिल्ली कैंपस बनकर तैयार हो गया, 3-3 सेशन बच्चों के हो गए हैं और यूनिवर्सिटी का ईस्ट दिल्ली कैंपस 373 करोड़ रुपए की लागत से 3 तारीख को मोदी जी ने बटन दबाया है। 185 करोड़ रुपए की लागत से इलेक्ट्रिकल ग्रिड बन चुका है। हर घर में जो पाइप के द्वारा गैस हम पहुंचा चुके हैं और इस प्रकार बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा और हर वक्त लोगों के साथ संपर्क में रहना, ये हम देख रहे हैं कि लोग आपसे खुद मिलने आए हैं, आप भी मिलने आए हैं, इनसे संपर्क आपका चल रहा है। भैया
हमारा ये मिलेंगे नहीं, क्या करेंगे? तो विधायक जी अवेलेबल रहते हैं, कितनी बार से जीत रहे हैं, मिलते रहते हैं विधायक जी? तो ये भाई तो जीत रहे हैं, कर रहे हैं, ये भाई तो जीत रहे अच्छा, हैं। एक बात बताइए, आप महिला हैं, विधायक जी कई बार के विधायक जो यहाँ से आपके आप नहीं लेकिन 2100 रुपए के लिए फॉर्म भरा, अरविंद केजरीवाल 2100 रुपए दे रहे हैं। अब कौन का नहीं भरो, अब कौन का नहीं भरो। महिलाओं को 2100 की बात करते हैं सर, कितना बड़ा मुद्दा है सर ये? कोई मुद्दा नहीं है, बहकाने देखो, लोग समझदार हैं। सवाल ये है आपने डिलीवर क्या किया है? जी। आदमी बड़े बड़े सपने लोगों को दिखाता है, ये फ्रॉड का काम है। आप डिलीवर क्या कर रहे हैं? आपने डिलीवर क्या किया है पिछले 10-12 साल में? पानी पीने का जहरीला है, हवा सांस लेने के लिए जहरीली है, जो हमारी जमुना माई है उसका आचमन कर नहीं सकते। टूटी चप्पल फटी पैंट में एक फटीचर दिल्ली में आया, 10,000 गज की जगह में 50 करोड़ से मकान बनाकर और शीश महल में वो रहता है। शीश महल एक बड़ा मुद्दा रहेगा बीजेपी के लिए। निश्चित रूप से न केवल शीश महल बल्कि वो कमोड 15 करोड़ के सोने के जड़ित जो कमोड हैं जिसमें बैठ के केजरीवाल जी पॉटी करते हैं, तो 15 करोड़ के जो आदमी कमोड लगा रहा है उसको शर्म आनी चाहिए कि दिल्ली के अंदर ना वो हवा दे सका, ना पानी दे सका, ना जमुना को ठीक कर चुका, और केवल झूठी कसम खाना। जो आदमी अपने बच्चों की झूठी कसम खा रहा है, जो आदमी पाकिस्तान चीन के सुर मिलाता है, जो आदमी टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ जाता है, उसका भरोसा आज दिल्ली का कोई भी व्यक्ति, माँ बहन बेटी नहीं करेगी। Sharma, who is confident of securing yet another victory in the constituency, seems to be a natural choice for the BJP in the constituency, as his previous wins have been notable, which also echoes in Janta's sentiments. There you see OP Sharma campaigning in his area in Vishwasnagar. The supporters of OP Sharma say that this time around also he will win, and he has been an MLA since 2013, and hence you see that how exactly he is campaigning in his area. हाँ सर बताइए. I am a businessman, and in 2013 the unit price of my factory was 13 rupees, and it is coming 18.5 rupees. बिजली के बिल फ्री देके हम लोगों के बिजनेस की ऐसी तैसी कर दी है। बिजली का बिल जो हमारा 40,000 रुपए आता था, आज की डेट में महीने का बिल 80,000 से तो बढ़ के आ रहा है बिल, आप ये कह रहे हैं? 80 to 90,000 डबल से ऊपर हो चुका है। अच्छा, एक बिजली का बिल का मुद्दा सर कितना रहेगा यहाँ पे? बिजली का बिल जो अरविंद केजरीवाल कहते हैं 200 यूनिट फ्री, पानी फ्री, तो ये मुद्दे क्या है? लोगों के मुद्दे क्या है? ये सब फ्रॉड है, कुछ नहीं करता। बिजली का बिल उतना ही आ रहा है जितना बंदा खर्च रहा है, सब इधर उधर हवा फैला रहा है, सब गलत है। अच्छा, सबसे पहले मैं इस मामले में, जब बिजली के मामले आए तो मैं बोलना चाहती हूँ, हमारे घर में कुछ भी नहीं है, फिर भी 4800 रुपए का बिल एक महीने से 22 दिन का बिल आया है, तो ये कहाँ फ्री है? ये तो और मुझे लग रहा है कि लूटने के काम कर रहे हैं। सर आप बताइए कि हाँ बताइए। ओम प्रकाश शर्मा जी का विधानसभा में 3 बार पहले जीत चुके हैं, और इस बार भी उनको जीतना, उनको पब्लिक का वो इतना लगाव है कि पब्लिक का वो काम करता है। पब्लिक विश्वासनगर के मुद्दे क्या हैं सर, जो आप चाहते हैं कि और अच्छा हो, या ये परेशानी है? क्या मुद्दे हैं विश्वासनगर? सर लगभग हमारे यहाँ पे विश्वासनगर में हर एक गली बन चुका है। हाँ। और लोग तो कहेंगे आप इसलिए शायद ये बात कह रहे हैं क्योंकि आप बीजेपी समर्थक हैं, लेकिन क्या मुद्दे आप सर ग्राउंड पे देख भी सकते हैं। जी जी जी। हमारे यहाँ गैस आ गया जी, पानी उन्होंने जितना भी गंदा करा, लेकिन विधायक जी अपने स्तर से, आपको एनएसए कॉलोनी यहाँ पे है, अपने स्तर से उन्होंने काफी पंप करवाए वहाँ पे। 25 समर्सिबल अपने पैसे का, सरकारी फंड से कोई उसका लेना देना नहीं, अपने से करवाए, क्योंकि वहाँ पे हमेशा समस्या होता था पानी का, और पानी की समस्या के लेकर इतना हमारे ऑफिस में भी आते थे, लेकिन जितना भी बन सकता था वही कर सकते थे। बात रही सर, मैं पूर्वांचल से हूँ, वो केजरीवाल पूर्वांचल के तो वोट कट रहे हैं अरविंद केजरीवाल। मैं बता रहा हूँ, वही बात बता रहा हूँ। वोट कटा है बचा है कुछ? मैं बता रहा हूँ सर, ये जो पूर्वांचल को करे ना कि वोट कट रहा है ऐसे करके बहला रहे हैं, पूर्वांचल उनके झांसे में नहीं आना, और वो जितना जोर लगा लें। अब तो वैसे तो मैं यहाँ विधानसभा की बात कर रहा हूँ, विधायक जी इनका तो कुछ बिगाड़ नहीं सकता कोई अभी फिलहाल। सर आप भी कहाँ से हैं? पूर्वांचल से कि वैसे? नहीं, मैं तो विश्वासनगर से है, पर वैसे बैकग्राउंड का। अच्छा ये बताइए, पंजाब से एक वोट कटने का एक बड़ा मुद्दा जो आम आदमी पार्टी उठाती है, क्या आपको लगता है यहाँ भी है ऐसा? और वो कहते हैं कि पूर्वांचलियों के वोट जो है आम आदमी पार्टी कहते हैं कि बीजेपी कटवा रही है। सर देखो, इनको झूठ बोलने का बहाना चाहिए। कभी कुछ, कभी कहते हैं हम दिल्ली ऐसी बना दी है, सिंगापुर बना दी है, कभी कहते हैं हमें मोदी जी काम नहीं करने दे रहे।
तो ये झूठ का अब इनको अपनी हार दिख रही है। केजरीवाल जी बौखलाए पड़े हैं और मैं सर आज बहुत बड़ा ऐलान कर रहा हूँ, अगर विश्वासनगर से केजरीवाल खुद भी ओम प्रकाश शर्मा जी के चुनाव आगे लड़े तो केजरीवाल जीत नहीं सकता। ओम प्रकाश जी के ऊपर विश्वास भरोसा है, इतना भरोसा है ओम प्रकाश शर्मा को केजरीवाल खुद भी अगर लड़ता है तो किसी कीमत पे भी नहीं जीत सकता। सबसे बड़ी बात रही पूर्वांचल की, तो कहते हैं विधायक जी हमारे ओम प्रकाश शर्मा जी पूर्वांचल प्रेमी हैं, शुरू से पूर्वांचल का सेवा की है और करते आ रहे। हम पूर्वांचली तो आंख बंद करके ओम प्रकाश शर्मा जी को वोट देंगे। However, Aam Aadmi Party has fielded its candidate Deepak Singla from Vishwasnagar constituency, who is a Delhi-based businessman and also a social worker. Singla is sure of Aam Aadmi Party's victory this time, citing decades of distress in the area. Well, Vishwasnagar is one of the constituency where Aam Aadmi Party has not been able to manage and win this particular seat. This time Aam Aadmi Party has nominated the candidate Deepak Singla from Vishwasnagar. Now, will the Janta be claiming the Vishwas on Deepak Singla or not? Let's talk to Deepak Singla himself, who is currently on the पदयात्रा in विश्वासनगर। दीपक जी, आप फिलहाल पदयात्रा कर रहे हैं विश्वासनगर से, आप दूसरी बार कैंडिडेट नॉमिनेट किए गए हैं। क्या लगता है आपको, जनता विश्वासनगर की कितना विश्वास जताएगी इस बार आप पे? देखिए, मैं तो घर घर जा रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ। लोग बता रहे हैं पिछले 12 सालों से 3 बार से लगातार यहाँ पे भाजपा के विधायक हैं, उन्होंने कोई काम नहीं किया। यहाँ की जनता बदहाल है, परेशान है। ना यहाँ पे हर जगह पानी की समस्या है, सीवर की समस्या है, नालियों की समस्या है, सड़कों की समस्या है, ना सीसीटीवी कैमरा लगे, ना मोहल्ला क्लिनिक खुले। पिछले 12 सालों से यहाँ के विधायक ने कोई काम नहीं किया और जनता इस बार पूरा उनको बदलने के मूड में है। जनता इस बार बदलाव चाहती है और चाहती है कि एक ऐसा नेता है जो उनके बीच में रह के उनका काम करे और हमारी जो भी कॉलोनी है, जो भी घर है, जो भी सोसाइटी है, सब में अच्छे से काम हो। हम फिलहाल यहाँ पर विश्वासनगर में मौजूद हैं, छोटी छोटी गलियों में, नुक्कड़ में, आप सब जगह जाकर कैंपेन कर रहे हैं। आप क्या जो पद यात्रा है आज सुबह सुबह जो आपने शुरू की है, इसके जरिए आप किस तरह से लोगों को कन्विंस कर रहे हैं कि आपको वो वोट दें ताकि आप पहली बार विधायक चुने जाएं विश्वासनगर से? देखिए, मैं तो लोगों के बीच में जाके एक ही बात कह रहा हूँ, आपने 3 बार उसको देखा है जो कभी ना आपके बीच में आया ना कभी काम किए। मैं आपके बीच में रहूंगा, मुझे भी एक मौका दीजिए, मुझे भी एक चांस दीजिए। मैं 5 साल सेवा करना चाहता हूँ, आप लोग बीच में रह के काम करूंगा और जो भी समस्याएं हैं, जो भी परेशानियां यहाँ पे, उन समस्याओं पे काम करेंगे, उन समस्याओं को सॉल्व करेंगे और सभी कामों को अगले 5 सालों में करवा के देंगे। ओपी शर्मा यहाँ से जीते थे पिछली बार भी, तो क्या ऐसी वजह रही कि आप सोच रहे हैं कि इस बार वो नहीं जीतेंगे और ऐसे क्या काम है कि वो नहीं कर पाए हैं? देखिए, पिछले 5 साल में यहाँ का विधायक लोगों के बीच में बिल्कुल नहीं आया, लोगों से बात नहीं की, लोगों से मिला नहीं। लोग परेशान हैं कि वो आगे बात भी नहीं करता है, मिलता भी नहीं है, सुनता भी नहीं है। काम करवाना तो बहुत दूर की बात है। यहाँ की मैं गली गली में घूम रहा हूँ, गलियों में नालियों की दिक्कत है, सीवर की दिक्कत है, सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं और खाली यहाँ का हल नहीं है। क्या आपके पास इन सारी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए कोई कॉन्क्रीट प्लान है? बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर विधायक आपके बीच में आता है, जनता की समस्याओं को सुनता है, अधिकारियों को लेके आता है, अधिकारियों से बात करता है और उस काम को करवाने की कोशिश करता है, तो हर काम करवाना आसान है, हर काम करवाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए समस्याओं को समझना और समस्याओं को सुनना बहुत जरूरी है। Vishwasnagar has been a coveted seat for the BJP, but the big question is the constituency poised for a change? What is the mood of Janta of Vishwasnagar? Will they be again choosing the BJP candidate OP Sharma, or will they be first time electing the Aam Aadmi Party candidate as their leader Deepak Singla? Let us have a ground zero survey so as to what does the Janta of Vishwasnagar think and on whom they will be putting on their विश्वास। आप बताइए सबसे पहले कि यहाँ पर फिलहाल विश्वासनगर में जहाँ मौजूद हैं, कितना काम हुआ है? क्या बीजेपी के जो यहाँ पर विधायक है उन्होंने काम किया है यहाँ पर? मैडम, काम तो आप ये देख लीजिए ना, सामने पानी भरा हुआ रोडों पे, इससे पता लग जाता है कि विश्वासनगर के जो हमारे विधायक है उन्होंने कितना काम किया है। यहाँ की जो पब्लिक है ना, यहाँ की जो पब्लिक है वो पानी के लिए त्राही त्राही कर रही है।
सीवर 20 साल पुराने पड़े हुए हैं, पानी की पाइपलाइन पुरानी पड़ी हुई है। लोग बाग अगर कंप्लेंट भी करते हैं ना जल बोर्ड में कि भाई हमारे यहाँ सीवर बड़ा तो एक हफ्ते बाद आते हैं, मतलब काम नहीं होते यहाँ काम हो ही रहा। मैडम ये जी आप खड़ी हैं विश्वास नगर की काउंसिलर, यहाँ पे बीजेपी के विधायक हैं। ये जो हमारा सिलम एरिया पड़ते हैं, झुग्गी चौपड़ी पड़ती हैं, आप इनके अंदर जाओगे एक भी रोड आपको, एक भी गली आपको ऐसी नहीं मिलेगी जिससे आप निकल सको। इनके गलियों की ना मरम्मत का काम, ना नवीनीकरण कई वर्षों से नहीं हुआ है। कुछ काम नहीं हुआ है 10 साल से, के यहाँ पर कुछ काम नहीं हुआ है 10 साल से। जो विधायक है बीजेपी के, उन्होंने कोई काम नहीं किया। बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ है। यहाँ तक कि विधायक का ये कहना होता है कि तुमने हमें वोट नहीं दिया इसलिए हम झुग्गियों में तक आएंगे तक नहीं। एक दिन वो अपना यहाँ पैर तक नहीं रखते हैं। 5 साल जैसे ये लोग वोट देके उनको चुनते हैं और अपना जैसे समर्थन देकर एक अपने प्रतिनिधित्व के तौर पे उनको चुनते हैं कि हमारी समस्याओं का वो समाधान करेंगे। लेकिन कोई भी किसी भी प्रकार से कोई समस्या सुनने तक के लिए एक व्यक्ति अगर उनके दरवाजे पे चला जाए और बोल दे कि हमारे पास ये समस्या है, उनको गाली देके भगा देंगे। तो आपको क्या लग रहा है इस बार जो लहर है वो किसके पक्ष में है? इस बार आम आदमी पार्टी, दीपक सिंगला। क्या कारण है? उन्होंने लोगों के बीच रह के 5 साल में अच्छा काम करा है, लोगों की सुनवाई करी है। All right, so that was a ground zero survey from, in fact, this particular constituency of Vishwas Nagar, where people are, in fact, very much sure that Aam Aadmi Party will again come to power. So Jagrati Park is also one of the park that's been built by the Aam Aadmi Party councillor, and this comes under the MCD. And 4 to 5 such parks have been built, and the current candidate Deepak Singla has been batting over the basic civic work that's been done by the Aam Aadmi Party in the constituency, and have been challenging the BJP candidate OP Sharma and questioning so as to what work has been done by him. Let us get a look so as to what work has been done over here. क्या-क्या काम हुआ यहाँ पे पार्क? मैडम पार्क की फुटपाथ की रिपेयरिंग हुई है, बेंचों की रिपेयरिंग हुई है, और यहाँ पे जैसे डार्क रहता था, डार्क स्पॉट बहुत ज्यादा थे, तो हम ये भी हमारे यहाँ की जो काउंसिलर है रचना धर्मी सेठी आम आदमी पार्टी से, उन्होंने ये लाइटें लगाई, आप देख रहे होंगे, ये लाइटें लगवाई है इस पार्क के लिए सौंदर्यीकरण। तो पहले नहीं था यहाँ पर? पहले नहीं थी ये चीजें, पहले नहीं थी, अभी हुआ है। यहाँ के मुख्य मुद्दे क्या-क्या हैं आपको लग रहे हैं जो इस क्षेत्र के? इस क्षेत्र के मुख्य मुद्दे यही है सबसे ज्यादा कि पार्कों में कोई भी, जैसे डीडीए के पार्क हैं, कोई वेल मेंटेन नहीं है, और यहाँ के जो पीडब्ल्यूडी के जो रोड हैं वो मेंटेन नहीं है, नाले आपको ओवरफ्लो मिलेंगे हमेशा यहाँ पे, और क्या नाम पीडब्ल्यू के रोड बड़ी जर्जर हालत पड़ी है, सबसे बड़ी समस्या है। Female over here, the women in fact over here who are residents of this particular area as well. आप यहीं रहते हैं सब? जी। अच्छा, क्या सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पर? हम देख पा रहे हैं कि सीवेज जो है वो खुला हुआ है, ये नाला रुका पड़ा है, नाला रुका पड़ा है, ये सब जगह ऐसा ही हालत है। सब जगह इसी जा रहा है, बहुत ज्यादा जाम हो रहा है, नहीं ये खुली भी नहीं है और बहुत ज्यादा हमें परेशानी, पानी अंदर जाए घरों में भरा हुआ है, कीड़े हैं, कीड़े जाते थे लंबे लंबे। अच्छा, शिकायत की आपने, किसी को कुछ बोला? मैम शिकायत करी है लेकिन कोई वो नहीं हुआ। ये बताइए क्या तैयार हो रहा है? ये दाल है इमरती के लिए, इमरती। हाँ, इमरती बनेगी इसकी, इमरती बनेगी, कभी खमीरा तैयार हो रहा है? हाँ, खमीरा तैयार हो रहा है। अच्छा, लेकिन ये बताइए कि चुनाव के रिजल्ट वाले दिन कौन खाएगा इसे, बीजेपी या आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी खाएगी। आम आदमी पार्टी खाएगी, क्यों खाएगी? क्यों, अच्छे काम कर रही है आम आदमी पार्टी, पहले से बढ़िया काम करा है। अच्छा, हाँ जी। तो सबसे ज्यादा मिठाइयाँ किसके लिए बिकेंगी और बनेंगी? आम आदमी पार्टी के लिए। बाबूजी क्या नाम है आपका? लालू। अच्छा, तो ये बताइए कि क्या लग रहा है इस बार आप इमरतियाँ किसके लिए बनाएंगे, आम आदमी पार्टी के लिए कि बीजेपी? पार्टी का ये बनाते और बनाते रहेंगे। अच्छा, उसी शुरू से। हाँ। अच्छा, तो इस बार भी उन्हीं के लिए बनेंगी? बनेगी, बिल्कुल बनेगी। अच्छा, आप बताइए क्या नाम है आपका? कौशल। अच्छा, कहाँ से हैं आप? यूपी से। यूपी से हैं। अच्छा, दिल्ली में कब से रह रहे हैं? दिल्ली में हो गए 20-25 साल। 20-25 साल। तो क्या लग रहा है इस बार किसके लिए मिठाइयाँ बनाएंगे आप? आम आदमी पार्टी के लिए। क्यों? आम आदमी पार्टी के साथ है। So this was our ground zero survey from Vishwas Nagar constituency of Delhi. Now it seems that the local issues like sanitation, clean water, roads will dominate the discourse of the voters when they go out for voting. Absolutely, Mohit. It seems like the local issues and the local development will be dominating the discourse of election as far as the Vishwas Nagar constituency is concerned. So viewers, this was all in today's Delhi Dangal Ground Zero survey. See you tomorrow with new constituency, new candidates and new flavor only on Times Now.